دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ریسٹوریشن ایج کو ڈسکس کریں گے۔ اس ایج میں انگلینڈ کی مونارکی دوبارہ سے ریسٹور ہوئی تھی۔ اس ایج کا ٹینیور 1660 سے 1702 تک تھا۔ بیسیکلی 1649 سے اپروکسیمیٹلی 1660 تک انگلینڈ پر پیورٹنز کا رول تھا۔ اس ایج کو ہم کامن ویلتھ پیریڈ بولتے ہیں، جس کو ہم نے ڈیٹیل میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کیا وجہ بنی اس ایج کی اور اس ایج میں اولیور کروم ویل نے کون سے رولز اینڈ ریگولیشنز نافذ کیے تھے۔ 1649 سے 1660 تک انگلینڈ پر پارلیمنٹ کی حکومت تھی اور پارلیمنٹ کا لیڈنگ ممبر اولیور کروم ویل تھا۔ اس نے 1653 سے 1658 تک انگلینڈ پر رول کیا تھا اور اس رول کے بیچ میں اس نے انگلینڈ کا نقشہ ٹوٹلی تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ 1658 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بیٹے رچرڈ کروم ویل کو انگلینڈ کا لارڈ پروٹیکٹر بنا دیا گیا تھا، لیکن اس سے انگلینڈ کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے خود ہی 1659 میں لارڈ پروٹیکٹر کے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا۔ جب رچرڈ کروم ویل نے ریزائن کر دیا تو انگلینڈ والوں نے ایسے کیا کہ چارلز فرسٹ، جنہیں 1649 میں بھی ہیڈ کیا گیا تھا، ان کے بیٹے چارلز سیکنڈ کو فرانس سے واپس بلا لیا تھا اور چارلز سیکنڈ 1660 میں فرانس سے واپس آ گئے تھے اور اس طرح انگلینڈ کی مونارکی دوبارہ سے ریسٹور ہو گئی تھی۔ اس لیے اس ایج یا اس ٹائم پیریڈ کو ریسٹوریشن ایج بولتے ہیں، مطلب اس ایج میں انگلینڈ کی مونارکی دوبارہ سے ریسٹور ہوئی تھی۔ اس ریسٹوریشن ایج میں صرف کنگ چارلز سیکنڈ انگلینڈ کے رولر نہیں تھے، ان کی تو 1685 میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کے بعد ان کا بھائی جیمز سیکنڈ کنگ بنا تھا۔ وہ کنگ کیوں بنا تھا؟ بیسیکلی جو چارلز سیکنڈ تھے ان کی اپنی کوئی لیجیٹیمیٹ چائلڈ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا کوئی لیگل چائلڈ نہیں تھا، جبکہ ان کے 14 سے 17 کے بٹوین ان لیجیٹیمیٹ یعنی کہ ان لیگل چائلڈ تھے، ایک بھی لیگل چائلڈ نہیں تھا، تو اس لیے ان کا بھائی کنگ بنا تھا۔ چارلز سیکنڈ کی ڈیتھ کے بعد ان کا بھائی جیمز سیکنڈ 1685 میں انگلینڈ کا کنگ بن گیا تھا۔ جیمز سیکنڈ ایک کیتھولک تھا، تو لوگوں کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی کیتھولک آ کر ان پر رول کرے۔ تھے تو چارلز سیکنڈ بھی ایک کیتھولک کی، لیکن وہ سب کے سامنے یہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ میں تو ایک پروٹیسٹنٹ ہوں، اور وہ پروٹیسٹنٹ کا فیور کرتے تھے، تو لوگ انہیں پروٹیسٹنٹ سمجھتے تھے۔ لیکن جیمز سیکنڈ اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھے، یہ کیتھولکس کو سر عام سپورٹ کرتے تھے۔ کیتھولکس اس وقت انگلینڈ میں تقریباً مائنورٹیز بن چکے تھے، تو جیمز سیکنڈ انہیں فل سپورٹ کرتے تھے۔ ان کے اسی سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کا پروٹیسٹنٹس کے ساتھ کلیش بنتا چلا گیا اور فائنلی 1688 میں انہیں انگلینڈ سے بھاگنا پڑا۔ بھاگنا کیوں پڑا؟ کیونکہ 1688 میں کچھ پروٹیسٹنٹ نوبلز نے ان کے سن ان لا ولیم آف اورنج کو بلا لیا تھا کہ وہ انگلینڈ پر اٹیک کرے اور انگلینڈ کی مونارکی لے لے، کیونکہ جو ولیم آف اورنج تھے یعنی کہ جیمز سیکنڈ کے داماد اور ان کی ڈاٹر میری سیکنڈ، وہ دونوں پروٹیسٹنٹ تھے۔ پروٹیسٹنٹ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی پروٹیسٹنٹ رولر آئے، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ولیم آف اورنج کے ساتھ مل کر جیمز سیکنڈ کا تختہ الٹنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ولیم آف اورنج جب انگلینڈ میں اپنی آرمی لے کر آتے ہیں تو جیمز سیکنڈ لڑے بغیر فرانس بھاگ جاتے ہیں۔ اس انسیڈنٹ کو ہسٹری میں گلوریس ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ریولوشن میں انگلینڈ میں خون کا کوئی قطرہ نہیں بہا تھا۔ جیمز سیکنڈ کے بھاگ جانے کے بعد ولیم آف اورنج اور اس کی وائف میری سیکنڈ انگلینڈ پر کمبائن رول کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دونوں مونارک بن جاتے ہیں۔ میری کی تو 1694 میں ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن جو یہ تھے ولیم آف اورنج، یہ پھر 1694 سے 1702 تک اکیلے انگلینڈ پر رول کرتے ہیں۔ یہ ولیم آف اورنج پارلیمنٹ کے سپورٹر تھے، تو انہوں نے ایسے کیا کہ 1689 میں ایک بل پاس کر دیا تھا جسے بل آف رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بل کی وجہ سے مونارکی کی پاور لمیٹڈ ہو گئی تھی۔ اب چارلز سیکنڈ کی طرف واپس چلتے ہیں۔ بیسیکلی جب 1660 میں چارلز سیکنڈ فرانس سے واپس آئے تھے تو یہ نہ صرف خود واپس آئے تھے بلکہ یہ وہاں کا کلچر، ان کا رہن سہن اور ان کا لٹریچر اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کے خلاف اپنا ہیٹرڈ لے کر واپس آئے تھے۔ وہ ایسے تھا کہ 1660 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی جسے ڈیکلیریشن آف بریڈا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ٹریٹی چارلز سیکنڈ اور پارلیمنٹ کے درمیان سائن ہوئی تھی۔ اس ٹریٹی میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جو چارلز سیکنڈ ہیں وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے جنہوں نے اولیور کروم ویل کا ساتھ دیا تھا اور جو انگلینڈ میں کامن ویلتھ پیریڈ لے کر آئے تھے۔ اگر وہ ان شرطوں پر عمل کر لیں گے تو چارلز سیکنڈ کو انگلینڈ کا مونارک بنا دیا جائے گا۔
चार्ल्स सेकंड ने पहले तो ये शर्त मान ली थी, लेकिन जब वो किंग बने तो उन्होंने उन लोगों से अपना रिवेंज लेना शुरू कर दिया। वो लोग जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की एग्जीक्यूशन के ऑर्डर साइन किए थे वो टोटल 59 लोग थे। चार्ल्स सेकंड ने उन 59 लोगों के डेथ वारंट इशू कर दिए थे। कुछ लोगों को तो मार दिया गया था, जबकि कुछ भागने में कामयाब हो गए थे। इन लोगों में से जो पहले मर चुके थे, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट की एग्जीक्यूशन को 11-12 साल का अरसा गुजर चुका था, तो चार्ल्स सेकंड ने ऐसे किया कि उन मरे हुए लोगों को कब्रों से निकलवा कर बाहर फेंक दिया था। इवन के इसने ओलिवर क्रोमवेल की डेड बॉडी को भी वेस्टमिनिस्टर एबे से निकाला, फिर उस डेड बॉडी को कई दिनों तक चेन डालकर लटकाई रखा। फिर बाद में उस डेड बॉडी को तो गड्ढे में फेंक दिया था, लेकिन उस डेड बॉडी से ओलिवर क्रोमवेल का सर उतार लिया गया था। फिर उसके हेड को एक नेज़े पर लगाकर वेस्टमिनिस्टर हॉल पर रख दिया गया था, जहां वो अगले 20 साल तक पड़ा ही रहा था। यहाँ तक तो इनकी हिस्ट्री का कुछ ओवरव्यू था। अब चलते हैं इस एज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स की तरफ। इवेंट्स की बात की जाए तो फर्स्ट के ऊपर आता है री ओपनिंग ऑफ थिएटर्स। चार्ल्स सेकंड को खुद लिटरेचर से काफ़ी लगाव था, तो इसने फ्रांस का लिटरेचर पढ़ा हुआ भी था। जैसे ही इंग्लैंड में वापस आया, इसने थिएटर्स को दोबारा से रीओपन करने की इजाज़त दे दी थी। थिएटर्स में एक नई थीम आ गई थी और थिएटर्स को एडवांस कर दिया गया था। डिफरेंट लाइट्स वगैरह लगा दी गई थी। इवन के वुमेन को भी थिएटर में परफॉर्म करने की इजाज़त दे दी गई थी, क्योंकि इससे पहले वुमेन परफॉर्म नहीं कर सकती थी। इवन के वुमेन का रोल भी मैन ही प्ले किया करते थे, वुमेन को परमिशन नहीं थी। लेकिन रिस्टोरेशन पीरियड में वुमेन को थिएटर में काम करने की इजाज़त दे दी गई थी। सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होना शुरू हो गई थी। सेकंड पे आता है रिजेक्शन ऑफ प्योरिटनिज्म। प्योरिटन्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पिछले 10-11 सालों में नाफिज किए थे, खास तौर पर जैसे कि संडे को रिलीजियस डे बना दिया गया था और क्रिसमस पर पार्टी वगैरह बैन कर दी गई थी। इस एज में उन तमाम पाबंदियों को खत्म कर दिया गया था जो स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज पर मबनी थीं। थर्ड पे आता है ग्रेट प्लेग ऑफ 1665। 1665 में लंदन में ग्रेट प्लेग और बबूनिक प्लेग, या जिसे ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, वो दोबारा से वापस आ गई थी। ये ब्लैक डेथ का लास्ट मेजर अटैक था। इसके बाद अगर ब्लैक डेथ आई भी थी तो उसने बहुत कम नुकसान किया था। इस प्लेग की वजह से तकरीबन लंदन में 1 लाख लोग मर गए थे। लंदन की 1/4 पॉपुलेशन यानी कि क्वार्टर ऑफ लंदन पॉपुलेशन इस प्लेग की वजह से मर गया था। फोर्थ पे आता है ग्रेट फायर ऑफ लंदन। 2 सितंबर 1666 को लंदन में एक आग लग गई थी, जिसे ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से याद किया जाता है। ये 6 सितंबर 1666 तक रही थी, मतलब इस आग का दौरानिया 4 डेज का था, लेकिन इसने इन 4 डेज में काफी तबाही फैलाई थी। यह फायर एक बेकरी से शुरू हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरे लंदन को अपनी लपेट में ले लिया था। इस फायर की वजह से 13,200 हाउसेस और 87 चर्चेस तबाह हो गए थे और 6 पीपल भी इस फायर की वजह से मर गए थे। लंदन बिल्कुल तबाह हो गया था। चार्ल्स सेकंड के लिए काफी चैलेंजिंग काम था लंदन को दोबारा तामीर करना, लेकिन उसने इस चैलेंज को पूरा किया और लंदन को दोबारा से तामीर किया गया था। इस फायर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। इस फायर के बाद इंग्लैंड में सफाई वगैरह का बेहतर एहतमाम किया जाता था, जिसकी वजह से ये जो बबूनिक प्लेग वगैरह थे ये थम गई थी, ये उनके खात्मे का सबब बन गई थी। फिफ्थ पे आता है कल्चरल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। इस एज में इंग्लैंड के कल्चर में काफ़ी तब्दीली देखी गई थी। चार्ल्स सेकंड फ्रांस में काफ़ी अरसा रहने के बाद आए थे, तो ये वहाँ का कल्चर भी लेकर आए थे। सोसाइटी का रुझान फैशन की तरफ बढ़ गया था और ये सब चीज़ें उस वक्त के लिटरेचर में भी नजर आने लगी थीं। लेकिन इन सब के बावजूद इस पीरियड में साइंस में काफ़ी तरक्की देखी गई थी। मुख्तलिफ पीपल्स लाइक रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने बॉयल्स लॉ पेश किया था, वो भी इस एज के केमिस्ट थे, और आइजैक न्यूटन, इनका तो सबको पता ही है। अगर ये उस दिन एप्पल को खा लेते तो हमें फिजिक्स ना पढ़नी पड़ती। इन शॉर्ट के इन जैसे जो बड़े बड़े फिगर्स थे वो इस एज में प्रेजेंट थे और उन्होंने साइंस को काफ़ी फैलाया था। बहुत सी नई साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इस एज में हुई थी। सिक्स्थ पे आता है पोपिश प्लॉट। ये प्लॉट 1678 में सामने आया था और ये एक झूठा प्लॉट था, मतलब इसमें कोई सच्चाई शामिल नहीं थी। एक बंदा था टाइटस ओट्स, ये एक प्राइस्ट था, लेकिन इसकी कुछ हरकतों की वजह से इसे प्राइस्ट के ओहदे से हटा दिया गया था। इसने अपना बदला लेने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, मतलब झूठ पर मबनी एक कहानी बनाई थी कि कुछ कैथोलिक्स हैं जो चार्ल्स सेकंड को मारना चाहते हैं। इसने ऐसे किया कि कुछ लोगों को, यानी कि बेकसूर कैथोलिक्स और कुछ प्रोटेस्टेंट को, इन सब में फंसा दिया। उन पर इल्जाम लगा दिया कि ये लोग कैथोलिक हैं जो किंग चार्ल्स को रास्ते से हटाना चाहते हैं।
लोगों ने इसकी बात को सच समझ लिया था और उन कैथोलिक्स पर मुख्तलिफ मुकदमात चलना शुरू हो गए थे और फिर आखिर में उन्हें बेगुनाह सजा दे दी गई थी। इन सब का असर ये हुआ था कि कैथोलिक्स पर फिर से जुल्म शुरू हो गए थे और उन पर नई पाबंदियां लगा दी गई थी। लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ जाता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। इसके अपने बयानात में काफी तजाद था। ये सुबह कोई और बात करता था और शाम को कोई और। फाइनली 1681 में इसका झूठ पकड़ा जाता है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद इसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ये लापता हो गया था। इसका कहीं कुछ पता नहीं चला था। 7th पे आता है राय हाउस प्लॉट। इस एज में एक और प्लॉट भी सामने आया था जिसे राय हाउस प्लॉट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जहां इस साजिश का प्लान किया गया था उस बिल्डिंग का नाम राय हाउस था। वो एक घर था। ये सारा प्लान उस बिल्डिंग में बनाया गया था तो इसलिए इसका नाम राय हाउस प्लॉट पड़ गया था। ये असली साजिश थी, मतलब ये मन गढ़ंत नहीं थी। इसमें चार्ल्स सेकंड और जेम्स सेकंड को मारने का प्लान बनाया गया था। बेसिकली इंग्लैंड में जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दो अलग ग्रुप्स थे, बिल्कुल ऐसे ही दो और ग्रुप्स भी थे जिन्हें विग्स और टोरीज के नाम से जाना जाता है। ये जो विग्स थे ये मोनार्की को हेट करते थे, मतलब इन्हें किंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जबकि जो टोरीज थे ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ये किंग के फेवर में थे। ये विग्स नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड पर कोई किंग रूल करे, तो इन्होंने ये प्लॉट बनाया था कि चार्ल्स सेकंड और जेम्स सेकंड को मार देते हैं ताकि इंग्लैंड में से मोनार्की खत्म हो जाए। लेकिन इस प्लॉट के बारे में पता चल जाता है और दो प्रोमिनेंट विग्स लॉर्ड विलियम रसल और एल्जर्नन सिडनी, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। फिर बाद में इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। इस इंसिडेंट के बाद विग्स की पावर कम हो गई थी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो इस टाइम पीरियड में वकूअ पज़ीर हुए थे। फिर 1685 में चार्ल्स सेकंड की डेथ हो गई थी तो उनका भाई जेम्स सेकंड किंग बन गया था। लेकिन उनका रूल भी ज़्यादा अरसा तक नहीं चल सका क्योंकि वो एक कैथोलिक थे। 1688 में फिर उनकी डॉटर और उनके सन इन लॉ आकर मोनार्की पर कब्जा कर लेते हैं। 1694 में उनकी डॉटर की तो डेथ हो जाती है, लेकिन 1702 तक उनका सन इन लॉ इंग्लैंड पर रूल करता है। ये था रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में कुछ ओवरव्यू। इस एज के लिटरेचर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।